بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حروف تہجی کے حروف ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ رے، رے، زے، زے نام ہے اس کا، رے، رے، زے، زے۔ شکلاً ایک ہے لیکن نقطہ کے کم و بیش سے نام بدل گیا اور کام بدل گیا، لیکن اس کی شکل ایک ہے۔ پہلے آپ اس کو یہ دیکھیے کہ اس کو لکھا کیسے جائے گا۔ بالکل آسان ہے۔ دیکھیے آپ اس طرح سے چوک رکھیں گے اور اس کو یہاں نیچے لائیں گے سیدھا، اور ایسے ترچھا کر دیں گے۔ ایسے اوپر سے لائیں گے، اس کو ترچھا کر دیں گے۔ اس کو اس طرح سے لائیں گے، ترچھا کر دیں گے۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ رے، رے، زے جب لکھیں گے آپ تو اوپر کا حصہ وہ سیدھا ہوگا۔ اگر آپ اس کو ترچھا کریں گے تو آپ نے کل دیکھا کہ دال، ڈال، زال ہم لکھ رہے تھے۔ دال کا اوپر والا حصہ ترچھا ہوتا ہے اور نیچے والا حصہ بھی ترچھا ہوتا ہے۔ تو اگر اس کو بھی آپ ترچھا کر دیں گے تو یہ دال کا شکل اختیار کر لے گا، رے نہیں رہے گا۔ اس لیے اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ آپ رے میں اوپر والے حصے کو سیدھا لکھیں اور نیچے والے حصے کو ترچھا کریں۔ سمجھا؟ رے اور دال میں یہی فرق ہے کہ دال کا دونوں حصہ ترچھا ہوتا ہے اور رے کا اوپر والا حصہ سیدھا ہوگا، نیچے والا حصہ سیدھا ہوگا۔ اس کا نام ہے رے، رے، زے، زے۔ اور اس کی ملانے والی شکلیں الگ سے نہیں ہیں، صرف جس طرح آپ کو کل ہم بتایا تھا کہ دال کے دائیں طرف ایک علامت ہے، گھما ہوا ہے ادھر، تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ پہلے اس میں آ کے حرف ملے گا، بعد میں نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے رے، رے، زے میں بھی پہلے حرف آ کے ملے گا، بعد میں نہیں ملے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیے، اگر بعد میں آپ کوئی حرف ملا دیتے ہیں چاہے وہ دال میں یا رے میں تو وہ رے نہیں رہے گا بلکہ دوسرا حرف ہو جائے گا، اور جب بھی یہ آئے گا وہ آخر میں آئے گا۔ سمجھ گئے؟ آخر میں آئے گا، اس کے پہلے حرف میں ملے گا تو آخر میں ہوگا ہی۔ یہی اس کا طریقہ ہے، آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے۔ اس کا نام ہے رے، رے، زے، زے، رے، رے، زے، زے۔ یہ دیکھیے زے جو ہے، ایک تو زے ہے جس کے اوپر صرف ایک نقطہ ہے، اور ایک ہے جس کے اوپر تین نقطہ ہے۔ تو یہ تین نقطہ کا جو زے ہے، اس کا استعمال آپ کہیں کہیں کبھی کبھی دیکھیں گے، لیکن ایک نقطہ کا جو زے ہے یہ آپ کو برابر سابقہ پڑے گا۔ تو یہی ہے رے، رے، زے، زے، جس کو لکھنے کے لیے اوپر سے آپ سیدھا لائیں گے اور نیچے جو ہے ترچھا کریں گے۔ رے، رے، زے، زے، 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 رے، رے، زے، زے۔ یہ آپ سمجھ گئے، رے، رے، زے، زے، یہ اس کا نام ہے۔ اور لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر سے آپ سیدھا لائیں گے اور نیچے ترچھا کر دیں گے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ رے، رے کے اوپر تو کے شکل کا ہوتا ہے، اور زے ایک نقطہ ہوتا ہے، پھر زے میں تین نقطہ ہوتا ہے۔ ایک نقطہ کا جو زے ہے
وہ آپ کو برابر استعمال میں ملتا رہے گا، لیکن 3 نقطہ کا جو زے ہے وہ کبھی کبھی آپ سے ملاقات کرے گا، یا آپ کی ملاقات ہوگی یا استعمال میں آئے گا، لیکن اردو میں وہ استعمال ہوتا ہے، اگرچہ وہ دوسرے لینگویج سے آیا ہوا ہے لیکن پھر بھی اردو میں وہ استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اس کا استعمال، اب یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رے ہے، سمجھا؟ یہ رے ہے، اس میں صرف پہلے حرف ملے گا، بعد میں نہیں ملے گا، یہ ہے اس کی شکل۔ آپ غور سے دیکھیے، آپ شکل کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ پہلے جو ہے تھوڑا یہ ہے، بس یہی ایک شکل ہے اور اس کی کوئی شکل الگ سے نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا جو رے کے پہلے گھما ہوا ہے یا نکلا ہوا ہے، وہ اس بات کی علامت ہے کہ ادھر سے حرف آ کر کے اس میں ملے گا، سمجھے نا؟ ادھر سے حرف آ کر کے اس میں ملے گا، یہی ہے رے رے زے۔ جیسے آپ لکھیں گے رات تو اس طرح سے لکھا جائے گا، لیکن لکھیں گے کر تو اس طرح سے لکھا جائے گا، یہ کاف کر بر، یہی ہے اس کو ملانے کا، بس اتنا ہی ملے گا، اور باقی اگر کچھ ہوگا، جیسے لکھتے ہیں آپ قرار، یہ رے دیکھیے پہلے آیا الگ آیا، بعد میں آیا الگ آیا۔ اب جیسے لکھیں گے قدرت، یہ کہیں اس میں حرف رے کے بعد اس میں کوئی حرف نہیں ملے گا، ہمیشہ یاد رکھیے رے کے بعد نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر آپ کو ہم لکھ کے دکھلایا کہ شروع میں جب رے آئے گا وہ بھی الگ رہے گا، آخر میں آئے گا وہ بھی الگ رہے گا، بیچ میں رہے گا وہ الگ ہوگا، لیکن صرف رے کے پہلے جو ہے کوئی بھی حرف آپ اس میں ملا سکتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے کر ہے، بر ہے، قرار ہے، سمجھا نا؟ تو یہی ہے اس کا طریقہ، اور یہی اس کی شکلیں ہیں، یہی اس کا استعمال ہے، آپ اس کو یاد رکھیں گے۔ اور لکھنے کا بھی طریقہ آپ کو بتایا کہ رے کا اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے، نیچے آ کر کے وہ ترچھا ہوتا ہے۔ تو رے نام یاد ہونا چاہیے آپ کو، رے رے جس کے اوپر تو کی شکل ہوتا ہے، زے جو ایک نقطہ ہوتا ہے، زے رے رے زے 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 زے زے رے رے زے زے رے رے زے رے رے زے رے رے زے زے رے رے زے زے رے رے زے زے رے رے زے رے
रे जे जे, रे रे जे जे, रे रे जे, रे रे जे, रे रे जे 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 जे, रात, कर, बर, करार, कुदरत, यही इसका इस्तेमाल है, यानी जगह है। रे रे जे जे का इस्तेमाल यही है, समझा ना। बस सिर्फ आप इसमें ये जान लें कि रे 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 जे, दाल डाल जाल, इसमें सिर्फ पहले ही हर्फ मिलता है, बाद में नहीं मिलता है। बस इतना ही आपको जान लेना है, सिर्फ इतना ही आपको जान लेना है कि इसमें पहले हर्फ मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा, समझ गए ना। इसके बाद आप जो भी हर्फ चाहें, दाल डाल जाल, रे रे जे में मिलाते रहें आप, कोई भी हर्फ मिलेगा और सिर्फ पहले मिलेगा। इसकी दूसरे हर्फों की तरह 3-4 शक्लें इसकी नहीं हैं। याद रहेगा आपको, तो आप याद रखिए, रे रे जे जे, 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 रात, कर, बर, करार, कुदरत, ये रे का इस्तेमाल और इसकी शक्ल मिलाने के बाद और बग़ैर मिलाने के बाद जो बनती है वो आपके सामने मौजूद है। आप इसकी तरतीब को देखिए, ये तरतीब आप रोज़ाना जो है 1-2 मरतबा बोलेंगे, तब जाके इसकी तरतीब आपको याद रहेगी, वरना याद नहीं रहेगी। अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, जे, यही है इसकी तरतीब। ये तरतीब आप रोज़ाना 1-2 मरतबा भी बोलेंगे तो आपको याद होता चला जाएगा, और एक मरतबा इंशाअल्लाह आप याद कर लेंगे, फिर भूलेंगे नहीं। ये सब मश्क की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ही दिन, ऐसा नहीं है कि सब दिन आप मना ये मश्क की ज़रूरत पड़ेगी या फिर इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये है कि तरतीब के साथ याद तो रहना ही चाहिए, समझ गए। तरतीब के साथ याद तो रहना ही चाहिए। कभी कभी ज़रूरत इसकी पड़ती है, अगर ज़रूरत नहीं भी पड़ती है फिर भी याद रहना चाहिए। अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, जे। तो याद रखिए, रे जब आप लिखेंगे तो ऊपर से सीधा लाएंगे और नीचे ला के तिरछा कर देंगे। रे में कोई भी हर्फ होगा पहले मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा, और रे ज़्यादातर अकेला इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप देखिए, रात हम लिखा है शुरू में है,
अकेला है। कुदरत लिखा है, बीच में है, अकेला है। करार लिखा है, आखिर में है, अकेला है। अब कर, बर, तर, पढ़, जड़, सड़क, ये सब है जो दूसरे हरफ में मिलता है, इसलिए आप याद रखिएगा। रे, रे, जे। आपको पूरी तफसील के साथ, इत्मीनान के साथ, हर तरह से आपको हम बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि आप एक क्लास में, एक नशस्त में जान जाएं कि ये हरूफ हैं, इसकी शक्लें ये हैं, इसका तरीक़ा ये है, और ये इस तरह से मिला करके इस्तेमाल किया जाता है। हम इस बात की कोशिश करते हैं कि इसके जितने भी तरीक़े हो सकते हैं, जितना भी इस्तेमाल हो सकता है, वो आपके सामने आ जाए और आपको याद हो जाए। सिर्फ ऐसा ही नहीं कर रहे हैं कि एक मरतबा बता करके आपको छोड़ देते हैं, बल्कि बार बार आपको याद दहानी कराते हैं, बताते हैं, ताकि आप कम से कम एक दिन में इतना हासिल कर लें। अगर आप एक दिन में इतना हासिल कर लेते हैं तो आप कम ही दिन में इंशाअल्लाह आप जानने लगेंगे, लिखने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे। सिर्फ आप अपनी लगन को बरकरार रखिए, सिर्फ आप अपने लगन को बरकरार रखिए, अपनी मेहनत को जारी रखिए और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आप कोशिश करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। आप याद रखिए, रे, रे, जे, जे, 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 रात, कर, बर, करार, कुदरत। रात, रात, कर, बर, करार, कुदरत। 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 रात, बर, करार, कुदरत। रात, कर, बर, करार, कुदरत। रात, बर, करार, कुदरत। रात, कर, बर, करार, कुदरत। तो आपको याद होगा कि रे, रे, जे, दाल, डाल, जाल, ये सब के पहले हर्फ मिलता है, बाद में कोई हर्फ नहीं मिलता है। और इसकी शक्ल जो है वो इसकी शक्ल सिर्फ इतना ही है कि पहले जो है थोड़ा सा ये घुमा हुआ है, वो इस बात को जाहिर करता है कि इसके पहले इसमें आके हर्फ मिलेगा। समझा? इसके पहले आके हर्फ मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। जैसे कि कर, बर, अगर रे और दाल, डाल, जाल, ये सब में बाद में आप हर्फ, कोई भी हर्फ मिलाएंगे तो वो हर्फ रे नहीं रहेगा, बल्कि वो दूसरा हो जाएगा। आप इस पर गौर कीजिए। देखिए, ये
आप लिखा है रे, आप इसमें कोई भी हर्फ जोड़िए, मान लीजिए वाव ऐसे जोड़ देंगे तो ये अब रे नहीं रहा, अब ये लाम हो गया। अब देखिए ये आपने रे लिखा है, इसमें नून जोड़ दीजिए, ये लाम नून हो जाएगा, समझा। तो रे के बाद कोई हर्फ अगर जोड़ेंगे तो वो रे नहीं रहेगा, लाम हो जाएगा। रे नहीं रहेगा, लाम हो जाएगा। तो यही है यही है कि दाल में अगर बाद में कोई हर्फ जोड़ेंगे तो वो दूसरा हर्फ बन जाएगा, दाल नहीं रहेगा। लेकिन दाल रहने के लिए ये शर्त है कि उसके पहले ही कोई हर्फ जुटे, बाद में ना जुटे। तो आप 2-3 बातें हैं जिसको याद रखेंगे कि रे ऊपर का हिस्सा सीधा होता है, नीचे का हिस्सा तिरछा होता है रे। और रे की अलग से कोई शक्लें नहीं हैं, सिर्फ उसके पहले हर्फ मिलेगा, इसकी अलग से कोई शक्ल नहीं है, सिर्फ पहले उसमें हर्फ मिलेगा। और रे जब भी आएगा, चाहे वो शुरू में आए, बीच में आए, आखिर में आए, वो अकेला ही रहेगा, समझा, अकेला ही रहेगा। और अगर कुछ हर्फ मिलता है तो पहले मिलेगा, काफरे बेरे, काफरे बेरे, जैसा कि आप देख रहे हैं रे में रात, रे पहले आया है, कुदरत में रे बीच में आया है, करार में रे आखिर में आया है। तो इस तरह से यही है, रे रे जे जे, रे रे जे जे जे, रे रे जे जे, रे 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 जे जे, रे रे जे जे, रे रे जे जे, रे रे जे जे, रे रे जे जे। रात, कुदरत, करार, कर, बर, तर, ये सब चीज़ है जो आप लिख सकते हैं। बस इसमें इतना ही याद रखिए कि रे का ऊपर वाला हिस्सा सीधा होता है और नीचे वाला हिस्सा तिरछा होता है। रे के अलग से कोई शक्ल नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि रे के पहले दाएं तरफ थोड़ा सा घुमा हुआ होता है और वो ये जाहिर करता है कि इसमें हरफ आके मिलेगा। बस इतना ही है और कुछ कहीं नहीं है। तो आप याद रखेंगे रे रे जे जे जे। और मेरा ये ख्याल है कि अब आपको याद भी हो गया होगा, इतना देर से आपको हम बता रहे हैं, याद हो गया होगा। और हिंदी में हम इसलिए लिखते हैं कि अगर आप सिर्फ हिंदी जानते हैं तो हिंदी की मदद से उर्दू को समझें, आपको आसानी होगी। आपके समझने के लिए, आपको जानने के लिए ही रे रे जे जे, 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 रे 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 जे जे, रे 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 जे जे जे।
रे रे जे जे रे रे जे जे रे रे जे जे रात कर कुदरत करार रात कर करार कुदरत 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 रात कर करार कुदरत। याद रखिए, रे रे जे जे रे रे जे जे रे रे जे जे रे रे जे जे रे रे जे जे। इसकी मिलाने वाली कोई शक्लें नहीं हैं, सिर्फ आप देख रहे हैं रे के पहले थोड़ा सा चांद की तरह बना हुआ है। वो इस बात को जाहिर करता है कि इसके पहले हा के हरफ मिलेगा और बाद में नहीं मिलेगा। जैसे रात कर बर करार कुदरत, आपको हम रे में कोई भी हरफ आप मिलाइएगा वो लाम होगा। देखिए, जैसे रे में हम नून मिला के आपको दिखलाया है, तो आप देख रहे हैं वो रे नून नहीं पढ़ा जाएगा, वो लाम नून पढ़ा जाएगा। दाल डाल जाल रे रे जे में यही है कि अगर बाद में उसमें कोई हर्फ आप मिलाएंगे तो वो लाम हो जाएगा, दूसरा हर्फ वो रे नहीं रहेगा। इसलिए रे जब भी आएगा अकेला आएगा या तो फिर उसके पहले हर्फ मिलेगा। पहले जैसे कर बर करार, ये देख रहे हैं आप, कुदरत में देख रहे हैं दाल के पहले आया है, रे अलग है, तो रे बीच में भी अलग आएगा, शुरू में भी अलग आएगा और आखिर में भी अलग आएगा। यही है रे रे जे जे रे 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 जे जे रे रे जे जे रे रे जे जे रे 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 जे जे रे रे जे जे रे रे जे जे रे रे जे जे रात कर बर करार कुदरत। तो आप याद रखिएगा कि रे के ऊपर तो के शक्ल का निशान होता है, जे के ऊपर नुक्ता होता है, और जे जिसको थोड़ा सा ताकत दे के आप बोलेंगे जे, वक्त लगेगा, जे उसमें 3 नुक्ता होगा। अब ये 3 नुक्ता होगा, ये हो गया। इसकी तरतीब है अलीफ बे पे टे टे से जीम
फे हे खे, दाल डाल जाल रे रे जे जे। ये इसकी तरतीब है। हिंदी में हम लिखा है इसलिए कि आप हिंदी की मदद से उर्दू को जानें। दरअसल मेरा मकसद है कि आप उर्दू सीख जाएं। उर्दू सीख जाएंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी। ये उर्दू जो है बैनुल अक़वामी ज़ुबान है और आसान ज़ुबान में से है, प्यारी ज़ुबान में से है, मीठी ज़ुबान में से है, आम ज़ुबान में से है, अच्छी ज़ुबान में से है। इसलिए इसकी कोशिश हो रही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए। सरकार भी इस पर बहुत रुपया खर्च करती है, तो आवाम की ज़िम्मेदारी है कि आवाम इसको कबूल करे, मेहनत को कबूल करे और आगे की तरफ बढ़े। रे रे जे जे, रे रे जे जे, रे रे जे जे, रे रे जे जे, रे 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 जे, रे रे जे जे, रे रे जे जे, रे रे जे जे, रे रे जे जे। ये हरूफ तहज्जी के हरूफ हैं, समझा ना। इसको इल्म हिज्जा कहा जाता है। इल्म हिज्जा हरूफ तहज्जी। दरअसल ये इसको मुफरद हरूफ कहते हैं। मुफरद के माना होता है अकेला, मुफरद के माना अकेला, इसलिए इसके मुफरद हरूफ कहते हैं। और इल्म हिज्जा इसको हरूफ तहज्जी कहते हैं, इसलिए एक एक हरफ को हिज्जा लगा करके अलग अलग करके पढ़ते हैं, इसीलिए इसका ये नाम है। तो ये नाम भी आपको जानना चाहिए और काम भी जानना चाहिए, शक्ल भी जानना चाहिए, समझा। तो हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि नाम और शक्ल, काम, ये सब चीज़ आप जान जाएं। आप जितना ज़्यादा जानेंगे, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, वो उतना ज़्यादा जानेंगे। तो यही है रे रे जे जे। तो इसमें दो तीन बातें याद रखेंगे आप। एक तो ये है कि आप इसकी तरतीब याद रखेंगे। अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल डाल जाल रे रे जे जे। यही है इसकी तरतीब। आज तक आपको हमें इतना बताया है। तो ये एक तरफ से रोज़ाना जब आप याद करते जाएंगे, तरतीब में जोड़ते जाएंगे, तो आपके लिए आसानी पैदा होगी याद करने में। तो जितना आपको रोज़ाना बताया जा रहा है, इतना आप रोज़ाना इस बात की कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपको याद हो जाएगा। दूसरी बात, रे जब लिखेंगे आप तो ऊपर से सीधा लाएंगे और नीचे तिरछा कर देंगे। रे 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 के ऊपर तो की शक्ल का होता है। जे जिसको आप आसानी से बोलते हैं, उस पर एक नुक्ता होता है। जे जिसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, उसमें 3 नुक्ता होता है। और इसकी मिलाने वाली अलग से कोई शक्लें नहीं हैं। जिस तरह दूसरे हरूफ आपने देखा, जीम, बे, ये सब मिलाने वाली शक्लें हैं, वो शक्ल इसकी नहीं है। और इसमें सिर्फ शुरू में ही हर्फ मिलेगा, आखिर में नहीं मिलेगा। शुरू में मिलाने के लिए आप देखिए चांद की तरह उसमें सटाया गया है, ताकि वो ये समझ जाए कि पहले हर्फ आखिर के मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। फिर बाद में हम आपको मिला के दिखलाया कि रे में बाद में कोई हर्फ आप मिलाते हैं तो वो रे नहीं रहेगा, बल्कि वो लाम हो जाएगा, वो लाम हो जाएगा। समझ गए ना? तो याद रखिए, वो लाम हो जाएगा। लाम से तो आप फिर मिला के हम आपको बताएं, रात, कर, बर, करार, कुदरत। इसमें रे के पहले भी हर्फ आया है, शुरू में रे अलग आया है,
بیچ میں رے الگ آیا، آخر میں رے الگ آیا. تو اس طرح سے آپ اس کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ آپ جان جائیں گے. اب میرا کلاس یہاں ختم ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ سوموار کو آپ کو ہم آگے بڑھیں گے.